friends, welcome back to my channel and welcome back to a new video. So the French Revolution is an important chapter of the class 9th NCERT of history. So I want to make you understand this chapter. I want to explain you this chapter because it's a very big chapter, and if we read it, it will be very interesting. If we'll read it thoroughly, we will try to understand it. It is a very interesting chapter about the France, and I want to, because my UTs are going to be start, so that's why I also want to make me understand this chapter. So through this video I am also able to understand this chapter, and you are also. So without any further, let's start the video. If this video is a little bit even useful for studies, so what you have to do, you have to like my video, share my video, subscribe my channel for these type of updates and entertainment updates, and comment down below about any query. So the French Revolution. So the important and the first date of the French Revolution is 14 July 1789. So 14 July 1789 is a most important date. So मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बुक और अपना हाइलाइटर या पेंसिल जो भी आपके पास, आप वो लेकर बैठ जाएं, तो ताकि मैं आपको जो क्वेश्चन बताती रहूँ आप उन्हें अंडरलाइन करते रहें एंड आपके एग्जाम में हेल्प हो. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था. सो द आंसर विल बी 14 जुलाई 1789. एंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था. सो आंसर विल बी द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड ऑन द 14th July 1789. So the city of Paris was in a state of alarm. Why? Because the king had commanded troops to move into the city. So the king had commanded troops, means army, to move into the city, just foreseeing the condition of the city, what is happening in the city. But the rumor, means ki afwah, spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. अफवाह फैल गई कि उसने भेजा है, राजा ने अपनी आर्मी को भेजा है हम सिटीजन्स को मारने के लिए, हमें मारने के लिए. सो ये अफवाह फैल गई. तो इस अफवाह की वजह से अराउंड 7,000 मैन एंड वुमेन टाउन हॉल के सामने गैदर्ड हुए एंड उन्होंने ट्रूप से लड़ने के लिए, बचने के लिए एक पीपल मिलिट्री बनाने की सोची. तो पीपल मिलिट्री तो उन्होंने बना ली, बट ट्रूप्स के पास, आर्मी के पास बहुत सारे क्या थे, हथियार थे, आर्म्स थे. बट उनके पास तो आर्म्स नहीं थे, वो कॉमन पीपल थे. सो फॉर द आर्म्स दे ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. आर्म्स मतलब कि हथियार ढूंढने के लिए वो बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए. अराउंड 100 पीपल, उसके बाद 100 पीपल 7,000 में से आधे पार्ट्स में डिवाइड होके कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था आर्म्स की सर्च में. तो उसमें से अबाउट 100 पीपल गैदर हुए और वो फोर्ट्रेस प्रिजन, द बास्टील. सो व्हाट इज द बास्टील? सो हियर वन क्वेश्चन अराइज दैट what is the Bastille? So the answer will be the Bastille was the prison of France, which is located in Paris, the capital of France. So the capital of France is Paris, and the Bastille fortress prison means कि prison मतलब कि जेल जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, वो बहुत बड़ा fortress कहा था बास्टील में, मतलब कि बास्टील उसका नाम था, वह पेरिस में था. सो वहाँ पे चले गए एंड वहाँ पे इतने बड़े जेल में, इतने बड़े प्रिजन में, वहाँ पे सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे जिनको उन्होंने छुड़ाया, उन 100 पीपल्स ने, एंड वहाँ पे उस पर अटैक किया, उसे तोड़ दिया. सो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ मैं कहाँ पर हूँ. सेकेंड पैराग्राफ. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टूवर्ड्स द eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. So one question more arises from this line, these two lines, that in which direction the fortress prison, the Bastille, was located. So the answer will be east direction, because the 100 people are moving to the eastern part, means the fortress prison of the Bastille was located in the eastern part of the city or located in the east. Where they hoped to find hoarded ammunition, means कि उन्होंने आशा की कि वहाँ पे उन्हें बहुत सारे हथियार मिलेंगे, बिकॉज वो एक जेल है. In the armed fight that followed through there were only 7 of them, means कि जो वहाँ in the armed fight that followed,
द कमांडर ऑफ द बास्टिल वॉज किल्ड, जो कमांडर था बास्टिल का उसे मार दिया गया, एंड प्रिजनर रिलीज्ड दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उन्हें छोड़ दिया गया एंड वहाँ पे सिर्फ 7 कैदी थे। ये द बास्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल। सो ये क्वेश्चन मैंने भी पढ़ा है एंड बहुत बार आता है कि बास्टिल को सब हेट क्यों करते हैं। सो बास्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। सो इट द मीनिंग ऑफ डिस्पोटिक पावर इज की वहाँ का जो राजा था, वहाँ का राजा लुइस 16 था। इसके बाद मैं आपको राजा के बारे में बताने वाली हूँ। सो वहाँ का राजा लुइस 16 था एंड उसने एंटोनिएट, मैरी एंटोनिएट ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से मैरी की थी। तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो थी वो दखल देती थी, दखल अंदाजी करती थी, जो काम होता था महल का या मतलब कि जो भी पूरे सिटी के अबाउट कुछ भी चीज़ होती थी तो उसमें वो दखल अंदाजी करती थी। एंड जो किंग था लुइस 16 वो कभी भी अपने मंत्रियों की सलाह नहीं लेता था, वो मनमर्जी करता था। सो दिस इज़ द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग कि किंग कभी भी अब किसी और की बात नहीं मानता था, वो अपनी मनमर्जी करता था। वहाँ पे किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन्स फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश्ड टू कीप अ सोवेनिर of its destruction. So the fortress was demolished. Demolished, the meaning of demolished is destroy. The fortress means कि prison था जो उसे तोड़ दिया गया, and its stone fragments means कि जो उसके पत्थर थे, कीमती पत्थर थे, because वो एक prison थी, बहुत फेमस प्रिजन थी। सो वहाँ के जो पत्थर थे उन्हें मार्केट में बेच दिया गया एंड उन्हें किसने खरीदा? उन्हें खरीदा जो पीपल यादगार दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास हाँ वो हैं, जो मतलब कि जिन पीपल के पास ज़्यादा पैसा था तो उन्होंने किया। एंड इस वजह से जो पीपल मिलिटिया थी, मीन्स कि जो 100 पीपल थे या जितने भी 7000 मैन एंड वुमेन गैदर हुए थे, उनका प्रॉफिट हो गया। कैसे प्रॉफिट हो गया? उन्होंने जो बास्टिल का फोर्ट था उसे बेचा, बास्टिल के प्रिजन को बेचा एंड देन उनके पास पैसे आए तो उनका प्रॉफिट हो गया। नाउ थर्ड पैराग्राफ, द डेज दैट फॉलोड सो मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। सो इस डे के बाद मीन्स 14 जुलाई 1789 के बाद जो थोड़े दिन तक रियोटिंग मीन्स दंगे, पेरिस में मीन्स की जो फ्रांस की कैपिटल थी वहाँ पे भी एंड पूरे फ्रांस में दंगे होने लगे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। यहाँ पे ब्रेड का मतलब वो वाला ब्रेड नहीं है जो हम खाते हैं कॉमन, यहाँ पे ब्रेड का मतलब है खाना, रोटी मीन्स की आटा। सो यहाँ पे कुछ पीपल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे खाने के पैसे को बढ़ाने पर, खाने के मतलब कि जो आटा था उसके पैसे बढ़ा दिया गया था। सो उस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, थोड़े दिन बाद मतलब कि सच लेटर मीन्स इस टाइम पे जब हिस्टोरियंस मतलब कि जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं वो जब पीछे मतलब फ्लैशबैक में जाते हैं, वो वहाँ पे रिसर्च करते हैं, दे सो इट एज द बिगिनिंग ऑफ चेंज ऑफ इवेंट्स। वो इससे उन्होंने इससे पता लगाया कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें जो हमारे दंगे हो रहे थे, मतलब जो भी हो रहा था, उसका मेन रीज़न ये नहीं था कि उन्होंने ट्रूप्स को भेजा मारने के लिए या फिर ब्रेड के हाई प्राइस। उनका मेन रीज़न था चेन ऑफ द इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूजन ऑफ किंग in France. Though most people at that time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? मीन्स कि वहाँ पे आदमियों ने, वहाँ के पर्सन्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रिवॉल्यूशन होगा, ऐसी रिवोल्ट होगी कि हमारा किंग ही मर जाएगा। बिकॉज जैसा कि बताया कि द कमांडर ऑफ बास्टिल वॉज किल्ड, मीन्स कि कमांडर कौन था? जो कमांड करता है, कमांड कौन करता है? राजा करता है। सो राजा तो था वो हेड उसकी डेथ हो गई थी। तो किसी ने ये नहीं सोचा था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंटिसिपेट नहीं किया था ऐसा आउटकम कि राजा ही मर जाएगा रिवॉल्ट में। सो यहाँ पे जब हिस्टोरियन फ्लैशबैक में देखते हैं तो वो देखते हैं चेन ऑफ इवेंट्स। वो चेन ऑफ इवेंट्स क्या थी? वो चेन ऑफ इवेंट्स के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि जैसा कि एक तो ये हो गया कि डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग थी, ये द बास्टिल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। एंड ये भी था कि जो हमारी सोसाइटी थी फ्रांस की, वहाँ पे 3 एस्टेट्स थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एस्टेट। First estate was the clergy, second estate was the nobility, and the third estate was the common people. So
वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को पैदा होते ही बर्थ मिल जाते थे, बट जो थर्ड एस्टेट था उससे को मतलब कि पैदा होते ही राइट्स मिल जाते थे कुछ, एंड जैसे वो बड़ा होता था उसे बहुत सारे राइट्स मिलते थे, ना ही उसे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। बट जो थर्ड एस्टेट था उसे ही सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, एंड उसके पास कोई भी राइट नहीं था। स्टार्टिंग में तो राइट टू वोट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस उन्हें स्लेव की एज अ स्लेव उन्हें यूज़ किया जाता था। सो अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों ये हुआ? सो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पता चलेगा, अभी हम सिर्फ कॉज मतलब कि थोड़े हम समझेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी। ओके, सो इन 1774 जब लुइस 16 कौन था? लुइस 16 एक बर्बन फैमिली का किंग था, नहीं किंग्स, जो बर्बन फैमिली, किंग्स की बर्बन फैमिली थी, एक रॉयल फैमिली थी, उसका वहाँ से बिलोंग करता था, एंड वो फ्रांस का राजा बना था 1774 में। एंड उस टाइम उसकी एज क्या थी? उस टाइम उसकी एज थी 20 ईयर्स। उस टाइम उसकी एज 20 ईयर्स थी, एंड उसने, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी कर ली 20 ईयर्स की एज में। उसके बाद उसको एम्प्टी ट्रेजर मिला। अपॉन हिज असेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। क्यों मिला उसे एम्प्टी ट्रेजर? सो उसे एम्प्टी ट्रेजर इसलिए मिला बिकॉज जो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, आप रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा भी खुद समझ आएगा। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. So, the war added more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than $2 billion livres. So, अब ये हैं causes. यहाँ से भी क्वेश्चन निकल जाता है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि एम्प्टी ट्रेजर लुइस 16 को क्यों मिला था। सो फर्स्ट रीज़न था कि जब लुइस 16 यहाँ का राजा बना 1774 में, 1774 से पहले जो ईयर्स थे, कुछ साल पहले 1774 तक, कुछ साल पहले से लेकर 1774 तक वहाँ पे लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर चल रही थी। वहाँ पे वॉर चल रही थी, एंड वॉर में आर्मी चाहिए थी, स्लेव चाहिए थी, तो उन्हें लेने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो उनके फाइनेंशियल रिसोर्स ख़त्म हो गए थे, ड्रेन हो गए थे। Now added to this war was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. So Versailles था वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो वर्साइल का पैलेस आप देखेंगे वो बहुत ही इतना सुंदर है। अगर आप नेट पे सर्च करते हैं, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना बड़ा है कि उसके मेंटेनेंस में बहुत सारे पैसे लगते थे, बहुत सारा फाइनेंस लगता था। सो सेकेंड रीज़न ये हो गया कि added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Next है कि under Louis XVI, France had the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. So एक दो तो ये पॉइंट्स हैं कि लुइस 16 को जब मिला तो एम्प्टी था, बट लुइस 16 को जब मिला तो उसने आधा तो खुद ही एम्प्टी कर दिया। कैसे किया? जो ब्रिटेन था ना, वो फ्रांस का दुश्मन था। ओके, फ्रांस की एनिमी थी ब्रिटेन, एंड जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, मींस अमेरिका, उसकी भी एनिमी थी ब्रिटेन। सो जब एनिमी की एनिमी होती है वो हमारी दुश्मन हो गई, मींस कि जो फ्रांस है वो अमेरिका की फ्रेंड हो गई, मींस कि एनिमी की जो एनिमी होती है वो हमारी फ्रेंड हो गई, दोस्त हो गई, तो अमेरिका फ्रांस की दोस्त बन गई। सो फ्रांस ने ब्रिटेन से अपनी एनिमी से बदला लेने के लिए 13 अमेरिकन कॉलोनीज की वॉर जीतने में हेल्प की। सो थर्ड ये उसने खुद ही कर लिया, एंड इस वॉर में क्या लिखा हुआ है? द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livres टू अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion livres. सो इस वॉर ने 1 बिलियन लिवरे इज द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस।
livre is the unit of currency in France. You can see here unit of currency in France discontinued in 1794. बट लिवरे का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये नहीं लिखेंगे द प्रेजेंट करेंसी, बिकॉज वो डिसकंटिन्यू हो गई 1794 में, वो डिसकंटिन्यू हो गई. अब लिवरे फ्रांस की करेंसी नहीं है. सो उस टाइम पे थी तो 1 बिलियन लिवरे से लेकर 2 बिलियन लिवरे तक उन्होंने बहा दिए थे, खर्च कर दिए थे. ओके. सो जब एम्प्टी ट्रेजर मिला तो अपने फ्रांस को चलाना तो था ही लुई 16 को. तो जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं. लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. सो जब अपने स्टेट को चलाना पड़ा तो 10% इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया लोन्स पर. Then the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments. To spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. So उसे बजट पे इंटरेस्ट देना पड़ता था एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को चलाने के लिए रेगुलर एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी को रन करना. तो उसके लिए उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए. Yet even this measure would not have sufficed मीन्स की टैक्सेस बढ़ाने पर भी सफिशिएंट नहीं था इतना फाइनेंस. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only members of third estate paid tax. सो लास्ट इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में हम देखते हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी वो 3 एस्टेट्स, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड द थर्ड एस्टेट मीन्स की पीजेंट्स एक्सेट्रा एंड शॉर्ट बिजनेसमैन्स, इनमें डिवाइडेड थी. एंड सिर्फ थर्ड एस्टेट को टैक्स पे करना था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया. एंड क्लर्जी और नोबेलिटी को मीन्स की फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को नहीं करना पड़ता था. सो अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों, क्या रीजंस थे. सो यहाँ से मैंने आपको थोड़े ही क्वेश्चंस बताया, आप और भी क्वेश्चंस निकाल सकते हो, जैसे कि कितने पैसे खर्च किए थे अमेरिकन कॉलोनीज करने में. सो 1 बिलियन लिवरे टू 2 बिलियन लिवरे drained in the help of American colonies. And the question can arise that what is livre? Livre is the unit of currency in France which was discontinued in 1794. If you will just write unit of currency in France, that will be incorrect because your marks will be deduct because the answer is not correct because it was discontinued. उसे हटा दिया गया, अब वो फ्रांस की करेंसी नहीं है. सो हमें लिखना है यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794. सो यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया एम्प्टी ट्रेजरी का था. एंड रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए क्या किया, तो टैक्सेस बढ़ाए. एंड उनके रेगुलर एक्सपेंसेस कौन से थे, कोर्ट को चलाना, आर्मी का मेंटेनेंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटी को चलाना, ये सब उनके रेगुलर एक्सपेंसेस थे. आगे को क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी. एंड आप इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें, तो आप रीड भी कर सकते हैं. सो अब सोसाइटी के एस्टेट्स एंड हम स्ट्रगल टू सर्वाइव, मैं आपको दिखाती हूँ. ये वाला स्ट्रगल टू सर्वाइव वाला, यहाँ तक स्ट्रगल टू सर्वाइव वाला यहाँ तक हम कल नेक्स्ट वीडियो में, कल तो नहीं, आई डोंट नो कि कल ही आएगी, बट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स. मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें. सो हैव अ ग्रेट डे.